नमस्कार, आवाज समाचार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं स्मिता रिशाल। वक्त हो गया 5 बजे की तमाम अहम और बड़ी खबरों का, जिस पर करेंगे नजर, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। अदानी मामले Regulators are normally very stringent about certain governance practices, and therefore they should. One instance, however much talked about globally it may be, I would think is not going to be indicative of how well Indian financial markets are governed. अदानी मामले पर एफएम की पहली प्रतिक्रिया। न्यूज 18 नेटवर्क के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा, वित्तीय संस्थानों को खतरा नहीं, एलआईसी का निवेश और एसबीआई का एक्सपोजर तय करने के दायरे के अंदर भारतीय रेगुलेटर काफी मुस्तैद। पुरानी टैक्स रिजीम को हटाने का कोई टाइम फ्रेम नहीं। न्यूज 18 नेटवर्क से एक्सक्लूसिव बातचीत में बोली वित्त मंत्री, 50% टैक्स पेयर्स को हो सकते हैं नई टैक्स रिजीम में शामिल। संसदीय कार्य मंत्री ने दी अदानी मामले पर सफाई। प्रहलाद जोशी बोले, विपक्ष चर्चा से बचने के लिए कर रहा है बहाने, हंगामे से आज भी संसद ठप। 2 दिन की गिरावट के बाद बाजार में बाउंस बैक। सेंसेक्स निफ्टी करीब 1.5% की बढ़त पर बंद। सेंसेक्स 910 और निफ्टी 244 अंक चढ़े। बैंकिंग, ऑटो, इंफ्रा शेयरों में खरीदारी, एनर्जी, फार्मा पर दबाव। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर बैन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से मांगा जवाब। 3 हफ्ते का दिया वक्त, अगली सुनवाई अप्रैल में। और बुलेटिन में सबसे पहले बात सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू की। बजट के बाद किसी प्राइवेट न्यूज नेटवर्क के साथ अपने पहले इंटरव्यू में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट और अदानी मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी। नेटवर्क 18 ग्रुप के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी के साथ इंटरव्यू में इनकम टैक्स राहत से लेकर ग्रोथ पर बातचीत हुई। अदानी ग्रुप पर इस मामले पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पहली प्रतिक्रिया अपनी दी है। उन्होंने कहा कि अदानी मामले से इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस पर असर नहीं पड़ेगा। नेटवर्क 18 के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में एफएम ने कहा कि रेगुलेटर्स गवर्नेंस को लेकर काफी सख्त है। अदानी ग्रुप में एलआईसी, एसबीआई के एक्सपोजर दायरे के अंदर है और इनसे वित्तीय संस्थानों को कोई खतरा नहीं है। You know, the opposition is taking aim at your government, saying that the banking and insurance companies have large exposure in Adani stocks. You know, and the investors and the broader market is looking to you for some direction on this issue. Is our banking and insurance system resilient to take this shock? I want to recall the words, coming from the horse's mouth has greater credibility. Both SBI and LIC have issued detailed statements, and I know the chairperson or the CMD has himself come out and explained how they are not overexposed or whatever they said. Yes. And also said, look, we are sitting over profits for the exposure that we have, which is well within the limit. That's what I understand they have said, and I've again read it through the media. They have very clearly said that their exposure is very well within the permitted limits, and that they are, even now with the valuation falling as well, they are still sitting over profit. So if that is the horse's mouth, as I refer to, word from the horse's mouth, but in general, both with the RBI, we do have the Financial Stability Board's meeting, which happens once in 6 months. We meet, even recently we have met. So I can only very clearly say, both the RBI and we, because of the FSB's meeting, Financial Stability Board's meeting, know that the Indian banking system, if anything, at this stage, for me to use this word, I want to use it with a sense of responsibility, like having gone through the twin balance sheet problem, Indian banking sector today is at a comfortable level, with their NPAs coming down to absolutely low levels. Yes. Recovery is happening, and their position is very sound, which gets reflected in the fact that when they go to raise monies in the market, they are absolutely comfortably raising monies as well. So the entire macroeconomic analysis which any expert would do
also highlights the fact that how comfortable the Indian banks are placed in. That cannot be that if they are at risk. Some of the global investors as well, as a knee-jerk reaction, seem to have pulled out some money in the last couple of days. Some have put, fresh investments on hold. What would your message be to the global investors? India remains, as before, an absolutely well-governed, stable government and also very well, regulated financial market. And as a result, I think the investor confidence which existed before shall continue even now. Our regulators are normally very, very stringent about certain governance practices, and therefore they should, one instance, however much talked about globally it may be, I would think is not going to be indicative of how well Indian financial markets are governed. So many lessons have been learned over the decades, and therefore I think our regulators have kept our market well in prime and prim condition. इस बार बजट में सबसे ज्यादा चर्चा है न्यू टैक्स रिजीम की। नेटवर्क 18 ग्रुप के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार लोगों को एक आसान और कम टैक्स वाला सिस्टम देना चाहती है, लेकिन इसके साथ ही पुराने सिस्टम का विकल्प खत्म नहीं किया गया है। सरकार पूरी तरीके से नए सिस्टम पर आना चाहती है, लेकिन इसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। You want, obviously, people to move to the new tax regime. So, by when will you then look at phasing out 80C and 80D deductions? Because, that's really the core of investments, healthcare. When will this happen? What is your time frame to sort of move to the new tax regime entirely? No, I'm not given myself a time frame. I'm more looking at it to make sure every Indian citizen makes his own choice, her choice. It's one thing for me to say I'm bringing in a better system, which is going to be less complicated, in fact, least complicated, which also is going to give you a rate which is going to be reasonable for each one of our levels of income, and make it attractive, therefore, for compliance and also for the rate. I pay less tax there. But it's another thing to have a system which is going on, where unfortunately, I don't want to criticize anybody. Unfortunately, the impression is I have so many exemptions given, which incentivizes me to save for insurance cover, for medical cover, for even saving for better interest earning that I can have, and so on. I don't want people there to think that I've denied them that. Please if you want to have it that way. But it's not just one government or the other. In general, the philosophy that governed it was you'll have all those exemptions and you'll feel tempted to have yourself cover, insurance cover, give yourself insurance cover or savings or whatever. But your tax rates were so high. Yes. So it's nice to give you some incentives, but good enough for me to have a big return in terms of the tax that I collect. But whereas what I'm giving you now, which was introduced 2 years ago, this is the second regime, and Prime Minister was very clear that taxpayers should know actually what they're paying and exactly feel comforted that they're not paying much. And actually bring in rates down, make it simple so that anyone sitting at home should be able to file their returns and know, and that's the end of the story. I don't need to keep immense documents and so on. So we brought that in, and steadily we are making it attractive, but not forcing anybody to get out of the exemption regime. But the fact remains there that the rates have been very high, and you've still got some discounts so that you can go with your... So how many people do you think will migrate? Any sense that the government has? I'm more talking about the layers which are covered Yes. by these, beneficial tax rates. I would think in that layer at least 50% will come 50%. That's a big number. And what is the current number? Any idea that the government has of that? Yeah, I have a number, but I don't think I can off the cuff say it. FM निर्मला सीतारमण के साथ ये पूरा इंटरव्यू आप देख सकते हैं शाम 7:57 में।
और अब बात संसद में हंगामे की करेंगे। दरअसल अदानी मामले पर हंगामे को लेकर आज फिर संसद ठप रही। विपक्ष यूएस शॉर्ट सेलिंग फर्म हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के साथ अदानी ग्रुप के शेयरों में गिरावट और आम निवेशकों के नुकसान पर चर्चा की मांग पर अड़ा हुआ है। विपक्ष ने आज फिर संसदीय समिति या सुप्रीम कोर्ट की जांच की मांग रखी। हालांकि लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति ने विपक्ष के सांसदों के सभी नोटिसों को मंजूर करने से मना कर दिया। तो वहीं आज सरकार इस पूरे मामले में विपक्ष पर भी हमलावर दिखी। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने दो टूक कह दिया कि अदानी और हिंडनबर्ग मामले में सरकार का कोई लेना देना नहीं है और विपक्ष बेवजह बहाने बनाकर हंगामे कर रहा है ताकि चर्चा से बच जाए। कुछ विषयों पर श्रीमती स्मृति जुबिन हमारा सरकार का लेना देना कुछ नहीं है। देयर इज एब्सोल्युटली नो कनेक्शन एंड राष्ट्रपति का अभिभाषण का चर्चा प्रायोरिटी रहता है। चर्चा शुरू करने के लिए तैयार है तो उनके पास कुछ मुद्दा नहीं है। वहीं सभी विपक्षी नेता एकजुट होकर कैमरे के सामने आए और वो कह रहे हैं कि उनकी मांगे जो थी उसको अध्यक्ष ने नहीं माना है। इस शताब्दी के सबसे बड़े घोटाले और सोच समझ कर कह रहा हूं, आर्थिक रूप से डाका जो डाला जा रहा है जनता के हितों पर, उस पर 267 के अंदर हमने अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए एक नोटिस दी थी। हम क्या कह रहे हैं? हम सिर्फ यही कह रहे हैं कि इसकी जांच, इन तथ्यों को पता लगाने के लिए संयुक्त संसदीय दल का गठन हो जाए। निश्चित रूप से उसमें भारतीय जनता पार्टी का बहुमत है, या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के संरक्षण में, नेतृत्व में लगातार इस प्रकरण की जांच हो और सारे तथ्य जनता के सामने रखे जाएं। हमारा प्रयास सिर्फ एक है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने अदानी मामले पर सीधे पीएम मोदी को ही घेर लिया। देखिए, ये जो पूरा घोटाला है, ये अडानी का घोटाला तो है ही, साथ साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का घोटाला है। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मोदी ने रेल दिया, मोदी ने तेल दिया, मोदी ने कोयला दिया, मोदी ने बिजली दिया, मोदी ने सड़क दिया, मोदी ने पोर्ट दिया, मोदी ने एयरपोर्ट दिया, मोदी ने सब कुछ अडानी को दे दिया। और मोदी का काला धन अडानी की कंपनी के माध्यम से, फर्जी कंपनियों के माध्यम से विदेशों से हिंदुस्तान में लगाया गया। तो देश के प्रधानमंत्री अब तक खामोश क्यों है? इस पे जेपीसी की जो अपोजिशन की डिमांड है, जेपीसी क्यों नहीं अनाउंस की जा रही है? और अब बात बाजार की करेंगे। 2 दिन की गिरावट के बाद बाजार में आज बाउंस बैक दिखा। सेंसेक्स निफ्टी करीब 1.5% की बढ़त पर बंद हुए, तो वहीं निफ्टी बैंक 2% से ज्यादा की तेजी यहां भी रही। सेंसेक्स 910 पॉइंट चढ़कर 60,842 पर बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी 244 पॉइंट चढ़कर 17,854 पर बंद हुआ। बैंकिंग, ऑटो, इंफ्रा शेयरों में खरीदारी रही। पीएससी, एफएमसीजी इंडेक्स बढ़त पर बंद हुए और एनर्जी, फार्मा, रियलिटी शेयरों में आज दबाव देखा गया। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन जल्द होंगे हाजिर। आप बने रहें हमारे साथ। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। और अब बात अमूल की करेंगे, जिसने एक बार फिर से दूध के दाम बढ़ा दिए हैं। कंपनी ने बयान जारी करके बताया है कि दूध के दाम 3 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दिए गए। अब अमूल ताजा 54 रुपए प्रति लीटर हो गया, तो वहीं अमूल गोल्ड यानी कि फुल क्रीम दूध 66 रुपए प्रति लीटर हो गया। अमूल गाय के दूध की 1 लीटर की कीमत बढ़कर 56 रुपए हो गई और भैंस का A2 दूध अब 70 रुपए प्रति लीटर हो गया। दूध के बढ़े हुए दाम गुजरात छोड़कर देश के दूसरे हिस्सों में आज से लागू हो गए। सभी सेक्टर्स को बजट संतुलित और ग्रोथ को बूस्ट देने वाला लग रहा है, लेकिन स्टार्टअप निवेशक फॉरेन एंजल इन्वेस्टर्स पर लगे टैक्स से चिंता जता रहे हैं। इंडियन एंजल नेटवर्क की पद्मजा रूपारेल समझा रही हैं कि फॉरेन एंजल टैक्स का स्टार्टअप निवेश पर कैसे असर होने वाला है। जो इंडस्ट्री इतना कुछ कर रही है, आज के दिन में 50% ऑफ द कंपनीज
बिल्ड कर रही है, स्टार्टअप्स बिल्ड कर रही है इंडिया में, बट फॉर ग्लोबल मार्केट्स 60% हमारी कंपनीज जो लिस्ट हो रही है उसमें वीसी प्राइवेट इक्विटी मनी बैठा हुआ है। प्लीज ये इंडस्ट्री को मत मरने दीजिए, मत पीछे रेट्रोग्रेड मत होने दीजिए, इनको आगे बढ़ाने की कोशिश करिए। प्लीज बी एन एनेबलर ऑन दिस। और आवाज एंटरप्रेन्योर में देखिए पूरी बातचीत ये शनिवार सुबह 8:27 पर और रविवार को 2:27 पर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए आप बने रहें CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।